حکومت اور IMF کے درمیان معاملات کے حوالے سے جو تاحال طے نہ پا سکے ہیں، مذاکرات جاری ہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ بجٹ کی کئی چیزوں پر IMF اتفاق رائے کر چکا ہے، لیکن کچھ معاملات پر بات چیت ابھی بھی جاری ہے۔ وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی ہے کہ IMF قرض کی رقم میں اضافہ کرے گا، تاہم ابھی تک رضامندی ظاہر نہیں کی گئی۔ پاکستان کے لیے IMF کے نمائندے ایسٹر پیریز روئس کا کہنا ہے کہ پاکستان حکام سے میکرو اکنامک استحکام کے لیے پالیسی پر بات چیت جاری رہے گی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان بجٹ اور مالیاتی اقدامات پر اتفاق ہو گیا، تاہم ابھی بھی مالیاتی اہداف پر اتفاق کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو، کہا آئندہ مذاکرات میں کسی رکاوٹ کا خدشہ نہیں، امید ہے کہ IMF قرض کی رقم اور مدت میں 1 سال کا اضافہ کر دے گا۔ پاکستان نے سال 2019 میں IMF سے $6 ارب قرض کا پروگرام لیا تھا، لیکن ابھی تک صرف نصف رقم ہی مل سکی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے یاسر نذر، اس کے علاوہ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، نازش لطفی ماہر اقتصاد بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ یاسر نذر، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے اب تک کی کیا اپڈیٹس آ رہی ہیں اس اجلاس کے حوالے سے، کیا مذاکرات ابھی بھی جاری ہیں اور کن باتوں پر اتفاق رائے ہو سکا ہے؟ جی بالکل، کیونکہ IMF سے جو معاملات ہیں تقریباً یہ بتایا گیا ہے ذرائع کی طرف سے کہ تقریباً طے ہونے کے قریب ہیں، اور اس میں حکومتی جو ذرائع ہیں ان کی طرف سے بھی اس کی تصدیق کی گئی تھی، لیکن جو IMF کے نمائندے ہیں ان کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ فی الحال جو معاملات ہیں وہ ان پہ خاص طور پہ بجٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ تو ہو گئے ہیں، لیکن کچھ چیزوں پہ ابھی تک جو پیش رفت ہے وہ ہونا باقی ہے، جس میں خاص طور پہ اب کیونکہ نئے ٹیکس وصولیوں، کسٹم وصولی اور GST اور انکم ٹیکس وصولیوں کے جو اہداف ہیں یہ بھی حکومت کی طرف سے بڑھائے جا رہے ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات پر ہر ماہ جو $5 فی لیٹر لیوی ہے وہ بھی لی جانی ہے۔ تو اس طرح IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آگے تو بڑھے ہیں، لیکن رسمی طور پہ تحریری طور پہ جو ایگریمنٹ ہے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا، لیکن حکومتی جو شخصیات ہیں ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی معاملات جو ہیں آخری مراحل میں ہیں، اور جلد جو ہے تحریری اور رسمی معاہدہ جو وہ ہو جائے گا اور IMF کو مکمل طور پہ راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن تاہم یہ صورتحال ہے کہ فی الحال باقاعدہ طور پہ معاہدہ جو ہے وہ تو تشکیل نہیں پایا، لیکن جو معاملات ہیں اس میں خاصی پیش رفت ہوئی۔ ٹھیک ہے، یاسر نذر ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، IMF سے تاحال مذاکرات جاری ہیں، وجہ کیا ہے تاخیر کی، کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہماری جو اکنامک ٹیم ہے اس کو پہلے دن یہ کام کر دینا چاہیے تھا، 8 ہفتے گزار دیے اور ان نیگوشیشن میں اوپر نیچے ہوتا جا رہا ہے، اور پوری آپ کی مارکیٹ اور آپ کے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بے چینی چلتی جا رہی ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی نقصان دہ ہے۔ تو آئی تھنک کہ اس میں اب فوکس طریقے سے کرنا چاہیے، اور IMF کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو IMF اور منسٹری آف فائنینس کی ایسی مشترکہ اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ یہ معاہدہ ہو گیا اور اس کو اب امپلیمنٹیشن میں جانا ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی بہت سے کام۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز، معذرت کے ساتھ آپ کی آواز ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی، ایک دفعہ پھر آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت نازش لطفی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے جو سچویشن اب بننے جا رہی ہے، جس طریقے سے یہ موجودہ حکومت مسلسل کہہ رہی ہے کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑے ہیں اور مزید کرنے پڑیں گے، کیا اب جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کچھ مناسب نظر آئے گا جو عوام کو فائدہ ہو سکے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک چیز سمجھے کہ جب کوئی آپ کو پیسے دیتا ہے تو وہ اپنی ٹرمز نہیں بتاتا ہے کہ میں کیسے ریکور کروں گا، کہ وہ یہ آپ سے بولتے ہیں کہ آپ یہ پیسہ مجھے کیسے ریٹرن کریں گے، اور اس کا آپ ایک پورا بنا کے دیتے ہیں کہ بھائی دس از ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو پے یو بیک۔ تو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوتا گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ کو یہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے فلاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے وسائل کس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو پیسہ دیا ہے وہ ہم وصول کر سکتے ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کو یہ سمجھنے کی چیز ہے، اگر ہم وہ
तरीके ना बता सकें जिस तरह हम वो पैसे जनरेट कर सकते हैं और उनको पे बैक करेंगे, तो फिर वो आपको रास्ते बताते हैं। उनके पास फिर वो आखिरी हरबा होता है कि जब वो आपको बताते हैं कि जी आप क्या क्या करेंगे तो ये पैसा जनरेट होगा, जिसमें वो आपको जो मोटी मोटी चीजें जिसमें वो होता है कि जी आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएं, आप बिजली की कीमत बढ़ाएं, आप गैस की कीमत बढ़ाएं, तो इस तरह आपके ऊपर वो फोर्स करते हैं। आपकी IMF की डील तो कंप्लीट हो जाएगी प्रीटी सून, दैट्स व्हाट आई फील, कि इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर जो हम इस वक्त प्रेशर देंगे इन्फ्लेशन को, जिस किस्म के इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं कि 35 to 40% के करीब इन्फ्लेशन, क्या वो गरीब आदमी उसको सह सकेगा कि नहीं सह सकेगा? क्योंकि मुझे इस पूरे बजट में कहीं भी ये नजर नहीं आया कि हम गरीब लोगों पे और अमीर लोगों के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। इस किस्म के कोई भी इक़दाम मुझे नजर नहीं आए जो होने चाहिए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क के लिए। तो चांसेस तो ये है कि हम बहुत जल्दी IMF से डील कर पाएंगे, मगर देखना ये है कि उस डील के उसमें हमें क्या क्या चीजों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और क्या क्या परेशानियां हमें ठीक है नाज़िर साहब, हम इसी पे ही हैं कि चांसेस हैं कि हम बहुत जल्दी IMF से जो मुज़ाकरात है वो पूरी तरीके से कर लेंगे। डॉक्टर साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? एक तरफ तो वज़ीर ख़जाना साहब इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि जो IMF है वो किसी तरह का लचक दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि कुछ मामलात ऐसे रह गए हैं जिन पर बात करने अभी बाकी है। क्या लगता है आपको, किस तरफ इशारा किया जा रहा है? कौन से ऐसे मामलात हैं या कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है IMF की? देखिए, एक तो बजट था, बजट में बहुत सी प्रॉब्लम्स थी और अनफॉर्चुनेटली हमने बजट पेश कर दिया बगैर IMF को ऑन बोर्ड किए और उसमें खासा वक्त आया हुआ है और उसमें परेशानी भी हुई है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा बढ़ी है और लोग क्या सगाइयां भी करते रहे हैं। दूसरा जो बहुत बड़ा हमारा एरिया है वो हमारा सर्कुलर डेट है, जो बिजली का इस वक्त निजाम है जिसमें कॉस्ट जो है वो हम पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाते क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर पूरी तरह रिकवर करेंगे तो बिल बहुत ज्यादा हो जाएंगे। उसके साथ साथ अब गैस का भी सर्कुलर डेट चल रहा है और वो भी तय होना है कि उसको कैसे खत्म किया जाएगा। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स मांगती हैं और वो करनी पड़ेंगी। बहुत सी जो है रिफॉर्म्स वो लोगों पे बहुत बड़ा बोझ डालेंगी क्योंकि उससे कीमतें ऊपर जाएंगी, इन्फ्लेशन होगी। लेकिन बहुत सी जो रिफॉर्म्स हैं उसमें डीरेगुलेशन भी शामिल है, उसमें ये भी है कि आप प्राइवेटाइज करें। जो इदारे जो हैं इस वक्त बहुत बड़े लॉसेस करते हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए और जनरली अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को कर्जों से छुटकारे के लिए कर्जे बढ़ाने के काम जो है वो खत्म होने चाहिए और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेज और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की जरूरत है जिसके बारे में रिफॉर्म्स चाहिए। अच्छा सर, ये चीज भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उमूमन हम बात करते हुए देखते हैं मौजूदा हुकूमत को कि वो पिछली हुकूमत पर डालते हैं कि रिकॉर्ड कर्जे लिए गए, इसी वजह से इतना ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा टफ हैं और उन्हीं को लेकर चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं पैसे वापस करने के लिए ये महंगाई जरूर करनी है। क्या इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखिए, जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई थी 2007 में तो उस वक्त तो कर्जे जो थे हमारे बैरून मुल्क कर्जे तकरीबन 38 अरब डॉलर के थे और 2018 में जब PTP और PMLN जो अब PDM के हिस्सा हैं उनकी हुकूमत गई थी तो वो तकरीबन 90 अरब डॉलर तक कर्जे पहुंच चुके थे। तो कर्जों का बोझ तो ये अनफॉर्चुनेटली पिछले 10 सालों में बढ़ा है और उसके साथ साथ अंदरून मुल्क कर्जे भी बेशुमार बढ़े हैं। उसकी वजह ये है कि हुकूमतें जो थी 2007 के बाद उन्होंने ज्यादातर सियासी बुनियादों पर अखराजात किए, ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया, जो बहुत महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। उस इंफ्रास्ट्रक्चर से इकोनॉमिक बेनिफिट्स तो कम मिले हैं बट इकोनॉमिक कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा हुई है। तो अगर आप किसी को ब्लेम करना चाहते हैं तो कम अज कम वो पिछले 10 साल की जो हुकूमतें थी उनको डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा क्रेडिट आपको देना पड़ेगा और ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा।
इस पे एक आध पॉइंट्स और हैं जो आपसे इस पे बात करनी है। मुजम्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तज्ज़ियाकार हैं। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिकल स्टेटस जब मिफ्ता इस्माइल साहब गए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनके आने के बाद बढ़ी, इकोनॉमिकल स्टेटस हमारा कितना नीचे गया। इस वक्त क्या देख रहे हैं आप कि जब ये IMF के साथ मुज़ाकरात हो जाते हैं, अगर बात मान ली जाती है, IMF लचक दिखा देता है, तो हम कहां पे खड़े होंगे अपने इकोनॉमिकल पॉइंट्स को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि IMF ने कोई लचक नहीं दिखाई और सारी लचक जो है हमको हुकूमत पाकिस्तान ने दिखाई है। जब हम हुकूमत छोड़ के जा रहे थे तो उस वक्त IMF सिर्फ हमसे एक सवाल पूछा था कि पेट्रोल की सब्सिडी आप खत्म कर दें, और उस वक्त जो है 25 रुपए फी लीटर थी, और अब आपके सामने के 84 रुपए फी लीटर जो है पेट्रोल और 130 रुपए लीटर डीजल बढ़ा दिया गया। उसके साथ साथ जब IMF ने देखा है क्योंकि ये हुकूमत आई और ये जो है बुरी तरीके से नाकाम हुई बाहर से पैसे लाने से, तो IMF ने वो काम करवा लिए इनसे जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। बिजली की कीमतें 45% बढ़ा दी। जब हम शौकत तरीन साहब ने जब मुआहिदा किया था IMF से नवंबर में, तो IMF ने कहा था 5 रुपए आपने की यूनिट बढ़ाना है, जिस तरह 2.5 इनने बढ़ा दिया था। 2.5 हमारा जुलाई में इनसे वादा था, इन्होंने 2.5 की जगह 8 रुपए लीटर वो 8 रुपए यूनिट वो बढ़ा दिया। गैस के चार्जेस बढ़ा दिए। अब आप बजट में देख लें जिस तरीके से इनके बजट में 30 रुपए की जगह 50 रुपए उल्टा पेट्रोलियम लेवी लगवा दी। टैक्सेशन जो है पर्सनल इनकम टैक्सेस को बढ़वा दिया गया। फिर उसके बाद 500 अरब के मजीद अभी ये जो बजट 10 तारीख को दिया था वो तो अब रद्दी की टोकरी के काबिल हो गया। अभी नया बजट वापस से आएगा। इस महीने सिर्फ 3 बजट आ गए। पहले मिनी बजट आया, फिर 10 तारीख को एक बजट आया, और अब जो है वापस एक बजट आएगा जिसमें बगैर बहस के जो है बजट पास किया जाएगा IMF से, और आवाम पे जो है एक बोझ डाला जाएगा। तो जितना बुरा जिसे कहते हैं कि नेगोशिएट कर सकते थे इन्होंने वो किया। और मुस्लिम साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया जो सूरत हाल आप लोगों के टाइम में थी, शौकत तरीन साहब ने आपने कहा कि जो मुआहिदा किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने जिस तरह आपने बताया कि 2.5 रुपए करके आगे बढ़ाना था और एक महीने में 5 रुपए बढ़ाने थे। लेकिन इन तमाम के बाद फिर जब इमरान खान के आखिरी 10-15 दिन थे तो हमने उस टाइम देखा कि उन्होंने 9 रुपए कम किए थे। क्या वो भी मुआहिदे का हिस्सा था? और ये भी बता दीजिएगा आज जो मुआहिदा हो रहा है इसकी टर्म एंड कंडीशंस के हवाले से आपको कुछ पता है? पहली बात तो ये कि पेट्रोलियम लेवी कोई शौकत तरीन ने नया नहीं लगाया था, ये डॉक्टर सलमान शाह साहब ही साथ हैं। ये एक बहुत पुराना टैक्स है, ये मतलब हर हुकूमत ने लगाया है। आखिरी दफा 2018 में 30 रुपए लीटर जो है ये जो है मिफ्ता इस्माइल साहब अपने बजट में करके गए थे। हमने तो उल्टा उसको कम कर दिया था, और सेल्स टैक्स भी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 0 हमने किया। उसके बावजूद हमारे टैक्स के रेवेन्यू टारगेट है वो 6100 अरब रुपए हमने हासिल किया। तो बात यह कि पेट्रोलियम लेवी तो कभी हमने मतलब नया टैक्स था ही नहीं। ये जो झूठ बोलते हैं कि IMF से पेट्रोलियम लेवी का मुआहिदा कर दिया। दूसरी बात यह कि पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए पाकिस्तान देती थी, अब जो है नई लाइन माइन बिछाई गई है, उसको 50 रुपए लीटर कर दिया जा रहा है। तो यानी कि आवाम को अगले 6 से 7 महीने मतलब आने वाली हुकूमत अपने हिसाब से तमाम चीजों को मैनेज करती है। मुज़म्मिल असलम साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़िर लुत्फ़ी साहब आपने भी बहुत शुक्रिया वक्त दिया। डॉक्टर सलमान शाह साहब आपने भी वक्त दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसा नजर आपने अपडेट किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। जो तमाम चीजें सूरत हाल आ रही हैं, IMF से मुज़ाकरात होने हैं, लचक दिखाएगा IMF या नहीं दिखाएगा, ये अपनी शराइत पर अगला कर्जा फराहम करेगा।